Welcome dear students to our lecture number 11, chapter number 5. Yes, note making. मैम ये नोट मेकिंग क्या होता है? सुनिए. Now whenever you are listening to lectures, आप क्या करते हो? आप आपके खुद के नोट्स बना लेते हो जो मॉड्यूल में दिया है. When you read that, you make your own notes. यानी क्या, जो कुछ भी आपको समझा है उस मॉड्यूल में, उसका जो मेन पॉइंट्स है एंड उससे कनेक्टेड जो सबऑर्डिनेट पॉइंट्स है, वो आप आपके वर्ड्स में शॉर्ट करके लिखते हो. यस, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज नोट मेकिंग. Note making is basically a chapter which is inserted in your syllabus because they want कि आपको ऐसे होना चाहिए कि आपका academics improve होना चाहिए, and that is why this note making has been inserted. This chapter is not applicable only to the English subject, but it is also applicable to all other subjects क्योंकि आप हर एक subjects में आपके खुद के notes बनाते हो. तो आपने कैसे नोट्स बनाने चाहिए ताकि आपका जो नोट मेकिंग प्रोसेस है वो बेटर हो जाए. ओके, लेट अस सी द डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस. डेफिनेशन: इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स. जिससे आप कॉपी करोगे या जिससे आप नोट्स बनाओगे उसे बोलते हैं ओरिजिनल सोर्स, एंड वहां से लेके आप आपके नोट्स बनाते हो. Essential skill study. यानी क्या? This is an essential skill that has been used. Why is this supposed to be essential? Because if you know how to remove notes, if you know how to take down notes, if you know how to summarize, if you know how to distinguish between main points and between subordinate points, it will enhance what you study. It helps achieve excellence in academics. लाइक वी से कि बुलेट पॉइंट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ. हमने इतने फ्लो चार्ट्स बनाए, डायग्राम्स बनाए, ट्री डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ. ये सब क्यों है? सो दैट यू पिक्चराइज एवरीथिंग इन योर माइंड एंड इट इज ईजियर टू रिमेंबर. द ईजियर योर नोट्स, द बेटर यू आर गोइंग टू लर्न. यूजफुल व्हेन देयर इज एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन. यू हैव मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल्स टू स्टडी. बट आपके जो इतने मोटे मोटे मॉड्यूल्स हैं, उसका जब हम नोटबुक में नोट्स बनाते हैं, वो एक नोटबुक में या हाफ अ नोटबुक में खत्म हो जाता है. Why? Because we are trying to distinguish between the main points that we need to know and between other sentences that are subordinate to the main points. It allows to skim and scan through available sources. Whatever is the available sources. अभी suppose मुझे सारे subjects है, okay? All the subjects का modules मेरे सामने है and उतने ही subjects का notebook मेरे सामने है. What will I prefer to read when it is last minute revision? It is obvious that I prefer to read जो मैंने अपने notes बनाए हुए हैं या जो मैंने stick notes लगाए हुए हैं modules में या जो मैंने bullet points, flow charts, tables बनाए हैं. I cannot sit and read every word from the module just one day prior to exam. Yes, so this note making, आपके पास suppose 5 modules है for one subject. वो 5 modules का आपने एक notebook में सारा summarize किया हुआ है, and that is more essential to you when you want to read about all the 5 modules put together. Notes can be made in a person's own comfort zone. आपके notes है, आप कैसे भी बनाओ. ग्रीन पेन यूज करो, ब्लैक पेन यूज करो, रेड पेन यूज करो, यू मल्टी कलर यूज करो, उसमें डायग्राम्स डालो, उसमें पिक्चर्स डालो, डू व्हाटएवर यू वांट. इट हेल्प्स जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब पूरे पैराग्राफ में नॉट एवरी वर्ड इज रियली सो इंपॉर्टेंट कि आपको सारा हाईलाइट करना पड़ता है. हम क्यों हाईलाइट करते हैं? अगर सारा ही इंपॉर्टेंट होता तो हम हाईलाइट के झंझट में पढ़ते ही नहीं. Why? Because everything is important. But we know that not all sentences are capable of producing on your examination paper. The sentences or the words that are capable of being produced in your exam paper are the highlighted words, are the important words, are the words which come in your note making. Note making यानी आपके खुद के notes. Simple as that. Helps to master the art of learning volumes of text quicker. जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप बुलेट पॉइंट्स निकालते हो, जब आप फ्लो चार्ट्स बनाते हो, यू कैन मेमोराइज द थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ मच फास्टर एंड कन्वीनियंट वे.
Strategies for effective note making. Read the text at least twice. आपको टेक्स्ट ही नहीं समझा तो आप उसका समरी कैसे बनाओगे, कैसे समझोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सबऑर्डिनेट है। इसलिए आपको एक दो बार या जितने बार भी आप पढ़ना चाहो उतने बार पढ़ो, ताकि आप पूरा जो दिया हुआ है टेक्स्ट वो अच्छी तरीके से समझो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सेकेंड रीडिंग। व्हेन यू रीड फॉर द फर्स्ट टाइम आपको सभी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, फिर आप जब सेकेंड टाइम रीड करते हो देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, दिस इज नॉट रियली एज इंपॉर्टेंट एज द नेक्स्ट सेंटेंस, और दिस पैराग्राफ इज नॉट इंपॉर्टेंट एज द नेक्स्ट पैराग्राफ, these points are not as important as the other points. This you can start distinguishing when you try to understand what is actually given in the text. You give a short title for the main idea. पूरा जो पैराग्राफ है या पूरा जो चैप्टर है उसके लिए सपोज यू रीड सम आर्टिकल, वो आर्टिकल अगर आपको आपके उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स को भी आप एक छोटा सा टाइटल दे दीजिए। Nothing works without a title because you yourself have no identity without your name, right? So आपका नाम जैसे है वैसे ही टाइटल देना चाहिए आपको आपके नोट्स के लिए। सब हेडिंग्स फॉर सबऑर्डिनेट आइडियाज। मेन आइडिया जो है उसके लिए हम टाइटल बोलते हैं, एंड उसके बाद के जो छोटे छोटे आइडियाज है उसके लिए हम सब हेडिंग्स देते हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। Leave out the unnecessary details. What you think should come into your notes, you are not supposed to write them down. Not every word is important. You must distinguish between what are the important words and which words are not. Logical sequence. चैप्टर के जो एंड में आया है वो आप पहले लिखते हो, एंड चैप्टर के जो शुरुआत में है उसका नोट्स आप लास्ट में लिखते हो, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड हाउ द चैप्टर इज फ्लोइंग। आप वही फ्लो में अगर सीक्वेंस बना के ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाते हो, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपने आपके नोट्स मॉड्यूल से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिए तो इट इज बेटर दैट यू लर्न फ्रॉम द मॉड्यूल। नोट मेकिंग इज टू मेक सिंपल व्हाट इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट टू कॉम्प्लिकेट व्हाट इज सिंपल। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मेन पॉइंट्स जो भी है आपके मॉड्यूल में, आपके पैराग्राफ में, सारे मेन पॉइंट्स आने चाहिए। अननेसेसरी डिटेल्स को लीव आउट करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंफॉर्मेशन ही लीव आउट करो। इफ समथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट आपको इंसर्ट करना ही है आपके नोट्स में। स्पेसिंग एंड नंबरिंग, आप जस्ट बिकॉज इट इज योर ओन कंफर्ट जोन और इट इज इन योर ओन वर्ड्स, इट इज योर ओन डायग्राम, डजंट मीन दैट यू डर्टी योर नोटबुक। आपको ऐसे खिचड़ी नहीं बनानी है उसके ऊपर भी नोट मेकिंग सिस्टमैटिक होना चाहिए। The more systematic, the more simple your note making is, the more attracted your mind gets towards what you have written. Always remember this. So आपका spacing, numbering, though these notes are for your own self maybe, still आपको सारे methods follow करने चाहिए जिससे आपका note making presentable बने। No ambiguity. आपके notes clear होने चाहिए, confusion create नहीं करना चाहिए। Okay? No self-interpretation and stick to the author's meaning. Suppose Companies Act आप पढ़ रहे हो, Companies Act में जो ऑथर कहना चाहता है वही आपके नोट्स में आना चाहिए। ऑथर कुछ और कहता है और आपके नोट्स में आपने उसका ऑपोजिट मीनिंग लिख दिया, then your notes becomes useless. Because note making is to shorten what the author means, what he has written in suppose say 50 words, you want to make it into 20 words. ठीक है, तो आपको जो कुछ भी छोटा करना है इसका मतलब ये नहीं कि आपको मीनिंग या इंटरप्रिटेशन चेंज करना है। You have to use abbreviations. Abbreviations क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं आपके नोट मेकिंग में। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करो जिसका आपको ही बाद में पता नहीं चले कि आपने क्या लिखा हुआ है। ओके, और इतने भी अब्रीविएशंस मत यूज करो कि पूरे सेंटेंस ही आपने अब्रीवेटेड कर दिया है और समझ में नहीं आ रहा है व्हाट यू हैव रिटन। सो दिस इज सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज टू मेक योर एफर्ट्स सिंपल। यस, डिफरेंस बिटवीन नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। Note making is an active process. Note taking is a passive process. Note making, active participation in information processing. Whatever is given to you, you try to analyze, summarize, identify, differentiate. आप सब करते हो note making में. But note taking में आप कुछ नहीं करते हो. Suppose you have to take the notes of somebody who's a speaker.
तो जो कुछ भी स्पीकर अब बोल रहा है आप वो लिखते चले जाते हो, दैट इज नोट टेकिंग। आप उसका इंफॉर्मेशन का सेग्रीगेट नहीं करते हो, प्रोसेस नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, दैट इज जस्ट सिंपल नोट टेकिंग। In note making, you segregate between main and subordinate ideas. Subordinate क्या होता है? जो main को support करते हैं. Note taking में there is no differentiation. Note making is your final stage or conclusion stage and note taking is your first stage. मतलब suppose you attend a seminar. वो सेमिनार में जाके जो कुछ भी स्पीकर बड़बड़ कर रहा है आप उसको लिख के लेते हो, ठीक है? कुछ सेग्रीगेट नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, बस whatever he is saying you write it down. After that when you go home, out of whatever you have written, you understand कि क्या मेन पॉइंट है इसमें का, क्या क्रक्स है, क्या सबऑर्डिनेट पॉइंट है, उसके बाद आप सेग्रीगेशन करते हो, फिर प्रॉपर स्पेसिंग, नंबरिंग, सब डायग्राम वगैरह सबके साथ आपके खूबसूरत नोट्स बनाते हो, तो उसे बोलते हैं नोट मेकिंग. It starts with note taking and ends towards note making. When you start reading, जैसे फर्स्ट रीडिंग में everything is important, you feel the entire chapter is important. तो अगर आपने पहले ही रीडिंग में नोट्स बनाना चालू कर दिया तो आपके नोट्स इतने लंबे हो जाएंगे कि वो मॉड्यूल के चैप्टर से भी बड़े हो जाएंगे. सो आपको क्या करना है, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो एंड देन आफ्टर दैट स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स. लेट अस सी द स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग. There are two styles, एक linear note making और एक non-linear note making. Linear note making is the simplest form of note making. It is a common style written line by line. जब आपके जो नोट्स है वो लाइन बाय लाइन से बुलेट पॉइंट्स में डाल के या नंबरिंग डाल के या छोटे छोटे पैराग्राफ डाल के एक एक सेंटेंस डाल के जब आप लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पैराग्राफ लिखते हो, दैट नोट मेकिंग इज नोन एज लीनियर नोट मेकिंग. इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. एक के बाद दूसरी लाइन आती है, हेडिंग आता है, सब हेडिंग आता है, कीवर्ड्स, अंडरलाइनिंग, इंडेंटेशंस यानी स्पेसिंग एंड नंबरिंग, अब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स, ये सारा लीनियर में आता है. देन व्हाट इज नॉन लीनियर? नॉन लीनियर जब हम डायग्राम्स डालते हैं, जब जैसे मैंने देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, टू पार्ट्स बनाए हैं, तो दैट इज सपोज्ड टू बी डायग्रामेटिकल फॉर्म. ओके, सो व्हेन आई एम डिवाइडिंग टू थिंग्स, when I'm showing it as a diagram, when I'm showing it as a flow chart, when I'm drawing a tree diagram, all these forms are supposed to be diagrammatical forms. Mind maps, tables, flow charts, tree diagrams. We know what is a flow chart. We know what is a table. We are going to see what is mind map and tree diagram. यहाँ पे इससे क्या होता है, when you draw a diagram of what is written in 2 or 5 pages, your 2 or 5 pages are converted into a single page or half a page because of the diagram or because of the flow chart or because of the table. Let us see what do you mean by mind mapping non-linear way. Mind mapping यानी यहाँ पे पैराग्राफ वाइज हम लिखते नहीं है, ये हमें पता चला, ये डायग्रामेटिकल फॉर्म. तो दिस इज सपोज्ड टू बी विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. Understand, your mind captures pictures better and that is how you remember a movie better than what you have read in your module. जब आप आपके मॉड्यूल के वर्ड्स पिक्चराइज करने लगते हो, when you start framing a story in your mind with whatever words are written, you remember that story, you remember that picture more than you remember the words. When you speak aloud whatever you are reading, you tend to remember it at least twice more than what you would remember if you are silent. Why? Because along with your mind, your mouth is also speaking, your ears are also working. When you are only reading it but not aloud, when you are reading it in your mind, तो क्या होता है कि आपके कान कुछ नहीं सुन रहे, सिर्फ आपका ब्रेन वर्क करता है and nothing else. But along with your reading, along with your mind, when your mouth and your ears also work, there is a connection between everything and you remember what you have read. Okay? Main concept and branches out the related concept. Easy addition of information. देखिए, अब यहाँ पे जो main idea है, suppose यहाँ पे how to mind map. Okay, this is my main idea. फिर उससे पेपर, ब्रांचेस, वर्ड्स, इमेजेस, कलर्स, जो कुछ भी उसके मेन आइडियाज है वो यहाँ पे रूट आउट हुए हैं. ये मेन आइडियाज के जो सबऑर्डिनेट आइडियाज है उनके और ब्रांचेस हुए हैं. ओके, सो नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पे मेन आइडिया में आपका नाम लिखना है, आपको एक माइंड मैपिंग करना है.
सपोज माय नेम रेवती तावरे, ओके, तो मैंने यहाँ पे रेवती तावरे लिख दिया। फिर मेरे जो इंपॉर्टेंट से मैंने यहाँ पे लिखा हॉबीज, फिर यहाँ पे लिखा करियर, फिर यहाँ पे रखा फैमिली, फिर यहाँ पे लिखा एजुकेशन। सो वट एवर इज से इम्पॉर्टेंट टू मी, ओके, वट एवर इज माई प्रायोरिटी, वो मेरे मेन ब्रांचेस है, ओके, से हॉबीज, करियर, फैमिली, एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज, ऐसे मैंने बना दिया, ओके, वट एवर आर माई प्रायोरिटीज। फिर हॉबीज को मैं और सेग्रीगेट करूंगी, पोएट्री मेकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, अंडरस्टैंड। सो पहले आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है, आपके मेजर प्रायोरिटीज क्या है उसका आपको ये मेन ब्रांचेस बनाने हैं, एंड उसके बाद आपको रिलेटेड टू दैट प्रायोरिटी और आपको ब्रांचेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, तो फैमिली में हूँ मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हुएवर, ओके, इज माई प्रायोरिटी इन दैट फैमिली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है, सपोज आई कंसिडर माई फ्रेंड्स एज माई फैमिली, सो आपको नेम योर मेन प्रायोरिटीज एंड मेन प्रायोरिटीज से आपको आपके ब्रांचेस बनाने हैं, अंडरस्टूड। आपको माइंड मैपिंग करके मुझे सेंड करना है। ट्री डायग्राम, इट रिजेंबल्स एन अपसाइड डाउन ट्री। देखो यहाँ पे मेन पॉइंट है, फिर 2 पॉइंट्स बने, ये हम ट्री डायग्राम हमेशा ड्रॉ करते हैं। देखो जब हम बनाते हैं हमारे नोट्स, हमेशा ट्री डायग्राम आपको दिखाई देगा, एक पॉइंट होगा, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं, फिर उस पॉइंट को सब डिवाइड करते हैं, फिर अनदर पॉइंट को सब डिवाइड करते हैं। यू कैन सी अ वोकैबुलरी चैप्टर, बहुत सारे हमने यहाँ पे सब डिविजन किए हुए थे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मैकेनिक्स ऑफ लीनियर नोट मेकिंग? मैम व्हाट इज लीनियर नोट मेकिंग? लीनियर नोट मेकिंग इज सपोज टू बी जब आप लाइन बाय लाइन पैराग्राफ वाइज नोट मेकिंग करते हो। फर्स्ट आपको हेडिंग या टाइटल देना है, तो टॉपिक जो कुछ भी है, ओके, वॉट एवर अदर पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, जितने भी है जिसका आपको नोट बनाना है, उसका जो कुछ भी टॉपिक है उससे रिलेटेड यू हैव टू गिव अ टाइटल। इजी टू कनेक्ट विद कंटेक्स्ट, आपका ऐसा टाइटल होना चाहिए जो कंटेक्स्ट से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली you cannot write some other title and something else is written in your context. Choose from the main idea. Title should generally be from what is the majority or what is the exact conclusion what the author is trying to give you, okay. फिर direct and to the point, to the point short title लिखना है। They usually answer what is there in the article. Subheading, अब हमने heading या title देखा है, अब हम देखेंगे what is subheading. It is a subordinate division of the main idea. Under this, the detailing follows. ठीक है, तो पहले मेन आइडिया का हेडिंग होता है, फिर मेन आइडिया होता है, फिर वो मेन आइडिया को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ये डिविजन्स को बोलते हैं सब हेडिंग्स। उसमें हम ब्रीफ पॉइंट्स डालेंगे। फिर होता है इंडेंसेशन, इंडेंटेशन में प्रॉपर अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग एंड नंबरिंग, यानी आपको प्रेजेंटेबल बनाना है इन शॉर्ट। Shifting from the margin indicates subheading और subpoints. जब आप यहां से चालू करते हो तो उसे बोलते हैं मेन पॉइंट्स, ठीक है। मेन पॉइंट से अगर आपने थोड़ा सा अंदर लेके पॉइंट्स बनाना चालू किया तो उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट पॉइंट्स। We will see the example. यूज यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, अब ये हम मैन्युअली नहीं देख रहे हैं, ये हम सपोज सॉफ्टवेयर द्वारा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर आपको यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। लेसर कॉम्प्लिकेटेड पॉइंटर्स, इतने बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग, पॉइंटर्स, कलर्स सभी आपने अगर एक साथ डाला तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली क्या किसके नीचे आता है, ओके। सो आपका प्रेजेंटेबल होना चाहिए बट ओवर प्रेजेंटेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, abbreviations, acronyms and symbols. You can use symbols in your note makings, you can use short forms in your note makings. It saves time and space. It makes notes easier to read, obviously, because you know your abbreviations. Generally, you should use the judicial or what is the generally accepted abbreviations. But if you have made your own abbreviations, own short forms, you must remember, and that is why आपको end of the note making में एक table बनाना है कि आपका abbreviations का मतलब क्या है। Don't abbreviate headings. Generally heading या सब हेडिंग या टाइटल या मेन आइडिया, इसको अगर आपने अब्रीविएशन में कर दिया तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो जनरली व्हाट इज मेन, जो टाइटल है, टाइटल के अंडर जो कुछ भी आएगा वो टाइटल को, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मेरा टाइटल क्या है, अब्रीविएशंस, एक्रोनिम्स एंड सिंबल्स, तो इसको अब्रीविएट मत करो, ओके। टाइटल को अब्रीविएट मत करो, डोंट अब्रीविएट हेडिंग्स, यस।
Avoid forming a sentence only with abbreviations. Like I told you, entire sentence formation में अगर आपने सारा abbreviations ही डाला, जैसे आप SMS लैंग्वेज में यूज करते हो, कैन यू प्लीज कम टुडे, ऐसे अगर आपको लिखना है तो कैन यू प्लीज कम टुडे, सारे वर्ड आप अब्रीविएटेड लिखते हो. ओके, टुडे को टू लिखते हो एंड DAY या DY लिखते हो, कैन को आप CN लिखते हो, यू को सिर्फ यू डालते हो, राइट, प्लीज को PL डालते हो. तो पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पे अब्रीविएशंस में नहीं डालना है. यू कैन यूज 1 or 2 वर्ड्स एज अब्रीविएशन. इंक्लूड अ की लिस्टिंग अब्रीविएशंस. At the end of your note, you must have, जैसे हम लास्ट पेज पे मेंटेन करते हैं अब्रीविएशंस. अब्रीविएशंस आपने क्या क्या यूज किए हुए हैं, उसका मतलब क्या है. नाउ समराइजिंग द नोट्स. आपके जो नोट्स है उसको भी आप शॉर्टन कर दो, ताकि एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के जस्ट 1 day prior, you can read those entirely shortened version of your notes. It should be maximum 25% of the original text. Imagine from your entire 100% मॉड्यूल, उसमें से आपने अगर 80% ही आपके नोट्स बनाए, 80% में से भी आपको सिर्फ 25% उसका समरी मिला, तो इमेजिन जस्ट 1 day बिफोर योर बर्डन विल बी रिड्यूस्ड सो मच. ओके, बट वो समराइज नोट्स में आपको सारे मेन पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं. दिस इज सपोज टू बी योर स्किल ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग क्या एग्जैक्टली आएगा, क्या पैराग्राफ आएगा, उसमें से वो सिखाया नहीं जा सकता. आपको अगर मैंने बोला कि मैंने ये पूरा आपको सिखा दिया है, अब मैंने क्या किया है, मैंने मॉड्यूल में से ये नोट्स बनाए हुए हैं. अब इन नोट्स में से भी आप समराइज्ड वर्जन, अब्रीविएटेड वर्जन बना सकते हो, राइट. सो जब आप एग्जाम को जाते हो, आपको ये पूरा 1 hour या हाफ एन आवर का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप आपके जो नोट्स है वो 10 मिनट में खत्म कर सकते हो, राइट. सो मॉड्यूल से मैंने ये नोट्स बनाए, नोट्स में से आप और उसके समराइज नोट्स बनाओगे. नो अब्रीविएशंस व्हाइल समराइजिंग. समराइज करते वक्त कोई अब्रीविएशंस यूज नहीं करना है, पूरा लिखना है, बिकॉज दिस इज योर लास्ट मिनट रिविजन दैट यू आर गोइंग टू डू. यू शुड नॉट बी कंफ्यूज कि अरे इसका मतलब क्या था, ठीक है. नो एडिशंस और डिलीशंस और अजम्पशंस. जो नोट्स में है उसमें से कुछ आपको डिलीट नहीं करना है और कुछ ऐड नहीं करना है, बस उसको और शॉर्ट करना है. ओके, शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस. यूज न्यू वर्ड्स, नो रेपिटेशंस. व्हाट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड इन योर नोट्स, उससे अलग वर्ड्स यूज कीजिए, उसको और समराइज्ड यूज कीजिए, ठीक है. तो एक पूरे सेंटेंस को या 2-3 वर्ड्स को अगर आप एक वर्ड में लिख सकते हो, ट्राई डूइंग दैट. रीच अ कंक्लूजन. नोट्स आपके प्रॉपर कंक्लूडेड नोट्स होने चाहिए. देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ नोट मेकिंग. पैराग्राफ पढ़िए. डिस्पाइट ऑल द रिसर्च, every one of us catches cold and most of us catch it frequently. हमेशा आपको सर्दी होती रहती है. Our failure to control one of the most commonest of all ailments sometimes seems ridiculous. Medical science regularly practices transplant surgery and has rid whole countries of such killing diseases as typhus and plague. The problem of common cold is unusually difficult and much has yet to be done to solve it. It is known that a cold is caused by one of a number of viral infections that affect the lining of the nose and other passages leading to the lungs, but the confusing variety of viruses makes study and remedy very difficult. हमें पता है कैसे होता है, but उनके जो root causes है, जो different viruses है, we cannot study them. It was shown in 1960 that many typical colds in adults are caused by one or the other of a family of viruses known as rhinoviruses. Yet, there still remains many colds for which no viruses has as yet been isolated. So, this is a paragraph that has been given to you. अब इसको देखो, आगे continued है paragraph. Listen. There is also the difficulty that because there is so much smaller than bacteria which cause many other infections, viruses cannot be seen with ordinary microscopes. Nor can they be cultivated easily in the bacteriologist's laboratory, since they only grow within the living cells of animals or plants. An important recent step forward, however, is the development of the technique of tissue culture, in which bits of animal tissues are enabled to go on living and to multiply independently of the body. This has greatly aided virus research and has led to the discovery of large number of viruses.
Their existence had previously been been not only unknown but even unsuspected. The fact that we can catch a cold repeatedly creates another difficulty. Usually, a virus strikes only once and leaves the victim immune to further attacks. Since we do not gain immunity from colds, still we do not gain immunity from colds. Why? It may be possible due to the fact that while other viruses get into the bloodstream where antibodies can oppose them, the viruses causing cold attack cells only on the surface. Or it may be that immunity from one of the many different viruses does not guarantee protection from the others. It seems therefore that we are likely to suffer from colds for some time yet. ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या लिखा गया है कि आपको सर्दी हमेशा होती रहती है, इवन इफ आपको एक बार होती है तभी भी आपको होती रहती है। जनरली सपोज इफ अ वायरस अफेक्ट्स यू, यू गेट एन इन्फेक्शन, आपके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाते हैं या इंजेक्शन थ्रू आपको वो एंटीबॉडीज क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद द रेपिटेशन ऑफ द सेम इन्फेक्शन रिड्यूसेस। But cold is not something like this. Cold keeps on happening because there are so many unknown viruses जो हमें अभी तक पता नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है कि वो एंटीबॉडीज क्यों वर्क नहीं करते, बिकॉज कोल्ड सिर्फ सरफेस पे अफेक्ट करता है वो वायरस और अंदर नहीं जाता, या जो हमें पहले कोल्ड हो चुका है वो वाला वायरस एंड जो नेक्स्ट टाइम कोल्ड होता है वो वाला वायरस, वो अलग अलग वायरसेस के वजह से होता है। सो दिस यू ट्राइंग टू से कि देखो इतना फनी है कि हमारा मेडिकल साइंस इतना ऊपर गया है, तभी भी we do not have any immunity from cold, we still catch a cold. तो ये पूरा पैराग्राफ है, ये हमें छोटा क्रिस्प नोट मेकिंग में बनाना है। We are going to see linear note making. Okay? पहला क्वेश्चन देखिए, on the basis of your reading of the above passage, make notes on it only using abbreviations wherever necessary. Okay? हाँ. Also suggest a suitable title. अब मैंने टाइटल बनाया है, देखो मैंने यानी देखो यहाँ पे क्या है ये नोट्स का, नो कंट्रोल ओवर कॉमन कोल्ड नोट्स। ओके, दिस एंटायर हमारे पैसेज में हमें कहीं पे भी टाइटल नहीं दिखाया गया, बट व्हाट इज माय मेन आइडिया कि कोल्ड जो कॉमन कोल्ड है उसके ऊपर अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए टाइटल है नो कंट्रोल ओवर कॉमन कोल्ड। तो उसमें देखो अभी मैंने मेन हेडिंग बनाया, मेन हेडिंग के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, फिर सेकेंड हेडिंग बनाया रीजंस फॉर कोल्ड, उसमें सब हेडिंग बनाया 2.1, 2.2, 2.3, फिर थर्ड हेडिंग बनाया, वैसे करके हम आगे गए। तो पहला हेडिंग है हाउ टू कंट्रोल कॉमन कोल्ड, फिर है रीजंस फॉर कोल्ड, फिर है प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग वायरसेस, ओके, फिर है डिवीजन ऑफ टिश्यू कल्चर एडेड बाय, ओके, फिर है नो इम्यूनिटी फ्रॉम कोल्ड। ओके, तो ये मैंने हेडिंग्स बनाए, हेडिंग्स के अंदर उससे रिलेटेड क्या क्या हमें पॉइंट्स दिखाई दिए वो हमने सब हेडिंग्स में बनाए। तो दिख रहा है आपको हेडिंग के अंदर हमने स्पेसिंग किया है सब हेडिंग को, तो इससे इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि ये जो बाहर है वो मेन हेडिंग है एंड जो अंदर है वो सब हेडिंग है। ये मेरा मेन है, उसके अंदर मैंने सब पॉइंट्स या सब हेडिंग्स डाले हुए हैं। बेसिकली ऑल योर मॉड्यूल्स, ऑल योर पॉइंट्स, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस वे ओनली, कि पहले हेडिंग होता है और उसके अंदर जो कुछ भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो मैंने यहाँ पे अब्रीविएशंस यूज किए हैं, हैव, ओके, इम्यूनिटी, तो ये जो सारे नंबर जहां पे भी अब्रीविएशंस यूज किए हैं, ये अब्रीविएशंस आई एम यूजिंग नॉट इन द टाइटल। टाइटल यानी कौन सा टाइटल? टाइटल यानी ये नो कंट्रोल ओवर कॉमन कोल्ड, यहाँ पे मैं कोई अब्रीविएशन यूज नहीं कर सकती हूँ, बट इसके बाद मैं अब्रीविएशंस यूज कर सकती हूँ मेरे इस वाले हेडिंग में और सब हेडिंग में। मेन टाइटल में कोई अब्रीविएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, फिर वंस वी फिनिश द 5 पॉइंट्स और हाउ मेनी एवर 10 पॉइंट जितना भी होगा उसका आइडिया, उसके बाद फिर लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस में डालूंगी। What are the abbreviations that I have used and what is its meaning? List of abbreviations. Okay? इसमें क्या हमने देखा? पहले हमने पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ को फिर मैंने हेडिंग दिया और पैराग्राफ मैंने मेन आइडियाज को सेग्रीगेट किया। क्या क्या है? हाउ टू कंट्रोल कॉमन कोल्ड, रीजंस फॉर कोल्ड, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग वायरसेस, next division of tissue culture aided by and supported by, no immunity from cold. These are my main headings that have been given in different paragraphs. तो ये मेन हेडिंग्स के बारे में उन्होंने और क्या क्या बोला है वो मैंने सब हेडिंग्स में डाला हुआ है।
Do not ratta marofy this example, because in your paper you are going to get an example that is completely different. Out of the innumerable, infinite note making examples, I cannot sit and give you notes on everything. ये जो है हमारे चैप्टर, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स है, जैसे नोट मेकिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्पोजिशन, इट इज ऑल अबाउट योर स्किल ऑफ राइटिंग. अभी मैं आपको सिखा नहीं सकती हूँ कि आपके दिमाग में ये आइडिया डालो. यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड यू. आप नोट्स कैसे बनाते हो? हर एक पर्सन का, हर एक स्टूडेंट के नोट्स अलग होते हैं. जब आप नोट समराइज करते हो, जब टीचर जो बोलती है उसके बारे में आप लिखते हो, हर एक पर्सन राइट्स अ डिफरेंट थिंग. व्हाई? बिकॉज आई डू नॉट हैव टू टीच यू हाउ टू मेक नोट्स. यू योरसेल्फ नो कि आपके लिए कि आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट है. सपोज somebody doesn't know the meaning of virus. अबे out of the 10 students, it is not necessary that everybody doesn't know the meaning of virus. There must be one person who doesn't know the meaning of virus. वो वायरस का डेफिनेशन वो लिखेगा क्योंकि उसको पता नहीं है वायरस क्या होता है. बट बाकी 9 लोगों के लिए ये वायरस का डेफिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो मेन पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट्स आउट ऑफ द एंटायर पैराग्राफ रिमेन्स द सेम, बट उसके अंदर जो सब हेडिंग्स है उसका आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसको आप कैसे इंपॉर्टेंट या कैसे आप उसका इंडेक्सेशन करते हो, कैसे आप उसका समराइज लिखते हो, दैट इज ऑल अप टू यू. I can give you examples. I cannot teach you how to create ideas. Out of the paragraph that you read, you need to think and you need to write. अभी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको लिखना कैसे है, कि आपको पैराग्राफ स्पेसिंग अच्छा करना है, आपको अब्रीविएशंस यूज करने हैं, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए ताकि आप 4 लंबे शब्दों को एक ही वर्ड में इस्तेमाल किया जाए. ये कैसे होगा? जब आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा. वो कैसे होगा? जब आप डिक्शनरी रीड करोगे या आप कंटिन्यूसली राइटिंग करोगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू कंप्लीट योर सेंटेंसेस. आपके ग्रामेटिकली कंप्लीट नहीं होते हैं सेंटेंसेस व्हेन यू राइट कॉम्पोजिशन. वन सेंटेंस इज नॉट लॉजिकली कनेक्टेड टू द अदर सेंटेंस. इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है. Past tense, present tense, future tense. Are you talking about tomorrow? Are you talking about today? Are you talking about yesterday? उससे आपका past, present, future tense decide होता है. उससे आप sentences में you are talking about past tense and suddenly out of nowhere you speak about present tense. तो that becomes confusing. Okay? आपके sentences जैसे होता है there are 25 states blah 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 ऐसे है. तो आप there are 25 states की जगह there 25 states ऐसे लिखते हो. तो there 25 states का कुछ मतलब ही नहीं होता है. When you say there are 25 states, it becomes a complete sentence. You people are not lacking on ideas. You people are lacking upon forming grammatical sentences. Now this is supposed to be language. In language, even if I teach you for 1 year, 2 year, 3 year, 4 years, still language में आप 100% आपको सभी कुछ पता है, ऐसे नहीं होता है. So this is just a question of some 2 or 3 months. In 2 or 3 months, what you need to get ready with, that at least you try to complete your sentences and as much as possible try to be grammatically correct. Okay? Yes. अभी इसके बाद once you've already made the notes, वो notes का भी आपको summary करना है. देखिए, write a summary of the passage in not more than 80 words. Okay? तो 80 words में summary देखिए. Despite having the cure to killing diseases like typhus and plague, it seems ridiculous that medical science has not done yet to solve the problem of common cold. This is because the study of viruses remain confusing as they cannot be seen with ordinary microscopes. Now with the development of the technique of tissue culture, large number of viruses has been discovered whose existence was earlier unknown. We keep catching cold and never become immune to it because the viruses causing cold attack only on the surface, unlike other viruses that get into the bloodstream and so can be opposed by antibodies. खत्म. This is your summary. तो summary में जो इतना बड़ा हमने passage देखा, उसके बाद हमने इतने उससे related थोड़े 80% में अपने notes देखे, फिर उसका आप 25% में ही पूरा पैराग्राफ कैसे लिख सकते हो, ये यहाँ पे दिया हुआ है. ओके? यहाँ पे हमने कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं किए हुए हैं. यहाँ पे यू नीड टू यूज एंटायर लॉन्ग फॉर्म्स, आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करने हैं. एंड यू नीड टू समराइज ऑन व्हाट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन योर नोट्स. यहाँ पे आपको लिमिट दिया जाएगा 80 वर्ड्स. तो मैंने आपसे कहा है कि आप जब everyday whenever you practice writing, you generally know that your 50 words get over in 5 lines or your 60 words get over in कितना 10 lines suppose, or your 100 words get over in say
25 लाइन्स, ये जनरली आपको अप्रोक्सीमेशन आता है, ताकि जब आप पेपर लिखते हो आपको डायरेक्टली ऐसे एक एक वर्ड के बाद काउंट नहीं करना पड़ेगा कि कितने वर्ड्स हुए, कितने वर्ड्स हुए, कितने वर्ड्स हुए। यू नो कि आपके 10 लाइन हुए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स हुए हैं, और वो 10 लाइन होने के बाद देन यू काउंट कि एग्जैक्टली कितने वर्ड्स हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये कब आपके होल्ड में आएगा, इज ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस राइटिंग एवरी डे, then you will know कि how many words take how many lines, because your handwriting तो never changes. Okay, तो how many words take how many lines, ये आपको समझने के लिए approximately you need to know, और you need to write every day. अभी 1 पेज का जमाना खत्म हो गया, now you need to write at least 2 or 3 pages. होमवर्क देखिए, ये आपका एक वेबसाइट मैंने दिया हुआ है, आपका वेबसाइट नहीं है, सीबीएसई का वेबसाइट है, इस पे जाके आप नोट मेकिंग के पैसेजेस सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट, write a letter to the government requesting them to speed up the vaccination process for COVID as the situation is worsening. Okay? ये जो लेटर है ये फॉर्मल लेटर होगा या इनफॉर्मल लेटर होगा? ये फॉर्मल लेटर होगा ऑब्वियसली, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट योर फ्रेंड. टाइम इज मनी, इसके ऊपर आपको 1 पेज लिखना है, आपको सारे चैप्टर सॉल्व करने हैं. यू आस्क मी कि मैम हमें सिर्फ ये लेक्चर देखना है या मॉड्यूल भी पढ़ना है? अरे ये मॉड्यूल में से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपको फर्स्ट रीडिंग के लिए ऑब्वियसली मॉड्यूल पढ़ना है, सेकेंड रीडिंग के लिए भी मॉड्यूल पढ़ना है, सेकेंड रीडिंग के साथ आप मेरे नोट्स पढ़ोगे और तीनों के रीडिंग्स कंबाइन करके आप आपके समराइज नोट्स बनाओगे. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू प्रोसीड. ओके, फिर कंप्लीट योर माइंड मैपिंग एक्सरसाइज, जो मैंने आपसे कहा है माइंड मैपिंग के लिए आपका नाम बीच में होगा, आपके प्रायोरिटीज जो होंगे वो मेन ब्रांचेस होंगे और उसके सबऑर्डिनेट ब्रांचेस आर रिलेटेड टू योर प्रायोरिटीज. ये आप माइंड मैपिंग करोगे, आज ही करोगे और मुझे सेंड करोगे. पहले जितने लोग होमवर्क सेंड करते थे अभी उतने लोग होमवर्क सेंड नहीं करते हैं. Why? Just because if the lecture is not there every day, does it mean you're not supposed to do your homework? अगर मैंने आपसे कहा नहीं कि आज आप 1 पेज लिखो तो आप लिखोगे नहीं. अगर मैंने आपसे कहा नहीं कि चैप्टर मत पढ़ो तो आप पढ़ोगे नहीं. सपोज इफ आई डू नॉट टेल यू टिल द एंड, आपके एग्जाम तक मैंने आपसे कहा ही नहीं कि चैप्टर पढ़ो, क्या आप पढ़ोगे ही नहीं? क्या आप बोलोगे अरे मैम ने तो बोला ही नहीं हमें पढ़ने के लिए? Okay, so take a step forward. You take 10 steps forward, I will give you more 20 steps, but show me your 10 steps at least. Okay, show me कि मैम आज हमने composition का आपने टॉपिक हमें नहीं दिया है, क्या आप हमें एक टॉपिक दे सकते हो so that we can write today? या आप आपका खुद का टॉपिक बनाओ और बोलो मुझे कि मैम देखो मैंने इस टॉपिक पे लिखा है, इसमें मेरा क्या गलत जा रहा है. मैक्सिमम टाइम्स व्हाट आई टेल यू इसके आपके सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं या आपका ग्रामेटिकल या आपके वर्ड्स या स्पेलिंग्स ठीक नहीं है. तो ये सब जो है ये स्पेलिंग्स, जब मैं आपको बोलती हूँ कि स्पेलिंग्स ठीक नहीं है, हाउ कैन यू इंप्रूव देम? स्टार्ट रीडिंग द डिक्शनरी, स्टार्ट रीडिंग मोर. ओके, एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर पूरे दिन में आप निकाल सकते हो रीडिंग करने के लिए, डिक्शनरी देखने के लिए. 1 पेज लिखने के लिए आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है. सो व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर इनिशियल स्टेप्स? इफ मैम डजंट टेल कि अरे मैम ने तो वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मैम ने बोला नहीं वो चैप्टर वापस देखने के लिए, तो नहीं देखोगे क्या खुद से? खुद का जब आप इंग्लिश करोगे, अरे इंग्लिश इज नॉट लाइक अकाउंट्स और मैथ्स और इंग्लिश इज नॉट लाइक लॉ. इंग्लिश इज एन एवरीडे सब्जेक्ट दैट यू हैव टू यूज इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स. अब लॉ का कोई सेक्शन नंबर्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कोई रेलेवेंस इज देयर इन लॉ, but English में 100% of English is used in all other subjects because you need to write your papers in English. तो if you know कि this is so important, तो आप करते क्यों नहीं हो? Why are you waiting for me to tell you कि अरे ये करो? Okay, so please complete your homework. Thank you, and I'm going to send you a PDF related to this note making. वो भी आपको solve करके मुझे send करना है. Thank you. Bye bye.